بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارسی کے شوقینوں اور اقبال کے شاہینوں کو فارسی کلام اور فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم پیام مشرق کی نظم نمبر 12 پڑھیں گے، جو باب افکار سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے 8 بند ہیں، ان میں سے ہم 2 آج سیکھیں گے۔ آپ کے سامنے یہ لکھ دیے ہیں، بند نمبر 1 اور بند نمبر 2، تو 2 کر کے ہم 8 بند پورے کریں گے۔ اس طرح یہ 4 لیکچر ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، پھر ترجمہ ہوگا اور پھر اس کا ہم پیغام لیں گے۔ تو سب سے پہلے مجموعی پیغام میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوری نظم کا۔ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات ہیں، ایسے ہی انفس و آفاق میں، کائنات میں بکھری ہوئی یہ چیزیں جو نظر آتی ہیں، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ ان میں سے ایک آیت ستارے بھی ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ ستاروں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں۔ جیسے قرآن کی آیات زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں، ایسے ہی یہ کائنات کی چیزیں بھی اور ستارے بھی ہمیں جینے کا فن دیتے ہیں۔ اس نظم میں ستارے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم صدیوں سے چل رہے ہیں اور آج تک ہم کسی سے ٹکرائے نہیں ہیں اور ہم برباد نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مدار پہ چلتے ہیں اور مسلسل چلتے ہیں اور نظم و ضبط کے ساتھ چلتے ہیں، اور ہم نے کوئی چھوٹی موٹی منزلیں اپنی پڑاؤ طے نہیں کیے۔ ہم لگاتار چلتے ہیں بغیر دم لیے، بغیر سانس لیے۔ اگر آپ کو بھی جینا ہے اس کائنات میں، تو آپ کو ٹکراؤ سے بچنا ہوگا اور کشمکش اور جنگ و جدل سے۔ آپ اپنے اپنی حدود کے اندر اپنے اپنے رواج کے مطابق رہیں اور اپنی رفتار کے مطابق چلیں اور مسلسل چلیں اور ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اور سب سے بڑا تعاون یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی حدود میں دخل نہ دیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ تو اس سے آپ تا دیر زندہ رہیں گے اور ترقی پاتے رہیں گے۔ یہ ہے اس کا مجموعی پیغام۔ وگرنہ کہتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھتے، تسلسل کو، باہم جد و جہد اور نظم و ضبط کو، اتحاد اور تنظیم کو جو ملحوظ نہیں رکھتے، تو دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور خود بھی مرتے ہیں، اور کبھی پیوست ہو جاتے ہیں زمین میں اور کبھی پھر جی اٹھتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ستارے کہہ رہے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم جب پڑھتے جائیں گے تو ان کی یہ بولیاں ہم سنتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ہستی ما نظام ما، مستی ما خرام ما، گردش بے مقام ما، زندگی دوام ما، دور فلک بکام ما، می نگریمو می رویم۔ جلوہ گہے شہود را، بت کدائے نمود را، رزم نبود و بود را، کشمکش وجود را، عالم دیر و زود را، می نگریمو می رویم۔ ترجمہ: ہستی ماں، ہماری ہستی، ستارے کہہ رہے ہیں۔ یہ ستاروں کا گیت ہے، سرود انجم، ستاروں کا گیت یا نغمہ۔ ہستی ماں، ہماری ہستی، نظام ماں، ہمارا نظام ہے۔ یعنی اگر اب تک ہم موجود ہیں تو نظم و ضبط کی وجہ سے ہیں۔ مستی ماں، خرام ماں، ہماری مستی، عیش و عشرت، خرام ماں، ہمارے چلنے میں ہے۔ ہم چلتے رہتے ہیں تو خوش رہتے ہیں۔ گردش بے مقام ماں، اور جو گردش ہے، یہ جو گھومتے رہتے ہیں ہم آسمان میں، یہ بے مقام ہے، یعنی ہم کہیں قیام نہیں کرتے، مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ زندگی دوام ماں، ہماری یہ دائمی زندگی، ہمیشہ والی زندگی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نسلیں پیدا ہوئی ہیں اور مٹ گئی ہیں، لیکن ہم صدیوں سے زندہ ہیں۔ دور فلک بقام ماں، جب ہم ان 3 چیزوں کو اپناتے ہیں تو جو فلک کا دور ہے، یعنی آسمان کا چرخ، یہ دائرہ جو گنبد ہے، یہ ہماری مرضی کو پورا کرتا ہے اور ہمیں کام کرنے کا، چلنے کا بھرپور موقع دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے جو دیا گیا ہے۔ ستارے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ منظم طریقے سے لگاتار کوشش کریں گے تو کائنات کی ایک ایک چیز آپ کی خدمت کرے گی۔ می نگریمو می رویم، ہم دیکھتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ جلوہ گہے شہود را، یہ جو جلوہ گاہ ہے یعنی دنیا،
नज़र आने की जगह, नुमायाँ होने की जगह, शहूदरा शहूद के लिए, यानी जो जिनको सामने आना है और पैदा होना है और उभरना है, उनकी ये जलवागाह है, ये दुनिया है। बुतकदाए नमूद राह, और दिखावा करने और नमूद करने वालों के लिए ये जो बुतकदा है, मुराद है दुनिया, ये भी एक बुत है, एक जिस्म है। रज़्म नबूदो बुदरा, और ये ना होने और होने की जंग को भी देख रहे हैं। रा का माना को, कशमकश वजूद रा, और वजूद की कशाकश को, ये जो कायनात में जितनी चीज़ें ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, इनकी कशमकश को, खींचातानी को, आलम देरो जूद रा, और देर और जल्दी, देर से और जल्दी से काम करने वाले जहान को, मी नगरीमो मी रवीम, इसको हम देख रहे हैं और चलते जा रहे हैं। तो सितारे यहाँ कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह लोग उभर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, किस तरह बाकी रहने के लिए एक दूसरे से नबर्द आजमा हैं, कशाकश है, खींचातानी लगी हुई है, और ये सारा कुछ हमारे सामने हो रहा है। कोई जल्द ही कामयाब हो जाता है, कोई देर से होता है, कोई देर से मिटता है, कोई जल्दी मिट जाता है। ये सारी चीज़ें हम दुनिया के अंदर देखते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। ये है इसका तर्जमा और हल्का फुल्का मफ़हूम। अब इस बंद के अंदर कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो इन मसादर से बने हैं। खिरामीदन चलना, गश्तन फिरना, गर्दिश इससे बना है। गर्दीदन घूमना, ये भी गर्दिश भी इसी से बना है। जीस्तन जीना, ये ज़िंदगी लफ्ज़ इससे बना है। निगरीस्तन देखना, निगरीम मी निगरीम इससे बना है। रफ्तन जाना या चलना, मी रवीम इससे बना है। नमूदन दिखाना, नमूदो नुमाइश इससे बना है। कशीदन खींचना, कशमकश इससे बना है। तो ये मस्दर हैं जिनसे ये कुछ फ़ेल और इसम बने हुए हैं। अब फ़ेल बनाने का तरीका मैंने बताया था कि अगर फ़ेल माजी बनाना हो, पास्ट टेंस, तो मस्दर की नून हटा दें। जैसे खरामीदन से खरामीद, वो चला, गश्त वो फिरा, गर्दीद वो घूमा, जीस्त वो जिया, निगरीस तो उसने देखा, रफ्त वो गया, नमूद उसने दिखाया, कशीद उसने खींचा। तो नून मस्दरी हटा दें तो फ़ेल माजी यानी पास्ट टेंस बन जाता है, पहला सीगा उसका। और अगर मुजारे बनाना हो तो उसके आखिर में दाल होना ज़रूरी है और दाल से पहले ज़बर होना ज़रूरी है। तो मस्दर से अगर बनाना हो तो देखें कि या दाल नून, अगर आखिर में 3 हरफ हैं, उनमें से दाल बाकी रखें, या और नून को गिरा दें, तो मुजारे बन जाएगा। खरामीदन से खरामद, गर्दीदन से गर्दद, कशीदन से कशद, ऐसे ही बना है। बाकी मसादर से ज़रा मुख्तलिफ है। उसमें गश्तन से गर्दद, गर्दीदन से भी गर्दद बन चुका है। जीस्तन से जियद मुजारे बनता है। निगरीस्तन से निगरद, रफ्तन से रवद, नमूदन से नुमायद, कशीदन से कशद। अब फ़ेल हाल बनाना है, जैसे यहाँ इस्तेमाल हुआ मी निगरीम हम देख रहे हैं, मी रवीम हम चल रहे हैं। तो ये मी कैसे बना है? ये मुजारे से पहले हमने मी लगा दिया है। मी खरामद, मी गर्दद, मी जियद, मी निगरद, मी रवद, मी नुमायद, मी कशद। वो चलता है, वो घूमता है, वो फिरता है, वो जीता है, वो देखता है, वो चलता है, वो दिखाता है, वो खींचता है। तो ये फ़ेल हाल यानी प्रेजेंट टेंस बन गया है। अब आप कहेंगे कि इनके आखिर में दाल आ रहा है, जबकि नज़म में हमने पढ़ा है कि मीम आ रही है, मी निगरीम मी रवीम। तो ये अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी मुतकल्लिम का सीगा बनाना हो तो तब दाल की जगह पर मीम आ जाती है। जैसे आप देखें कि मी नगरद से हम दाल की जगह मीम लगा दें तो मी नगरम आ जाएगा, और जमा बनाना हो तो मी निगरीम आ जाएगा। ऐसे ही अगर सिर्फ दाल बाकी रखें तो पहला सीगा यानी वो देखता है, और जमा बनाना हो तो दाल हटा के नद लगा दें, मी निगरंद वो देखते हैं, मी निगरी तू देखता है, मी निगरीद तुम देखते हो, मी निगरम मैं देखता हूँ, मी निगरीम हम देखते हैं। इस तरह ये ज़मीरें आगे बढ़ाकर दाल की जगह पे तो बाकी 5 सीगे बना दिए जाते हैं। यहाँ अमर और नही भी बनाया गया है। पहले सबको मैं बता चुका हूँ लेक्चर्स में कि अगर मुजारे की दाल हटा दी जाए तो फ़ेल अमर बन जाता है। खरामद से खराम, गर्दद से गर्द, और जियद से जी, निगरद से निगर, रवद से रो,
नुमायद से नुमाई या नुमा भी कह देते हैं, या नहीं लगाते। कशद से कश, ये फ़ेल अमर बन गया। और फ़ेल अमर से पहले मीम लगा दो तो फ़ेल नहीं बन जाएगा। खराम से मखराम, ना चल। गर्द से मगर्द, ना घूम ना फिर। जी से मजी, ना जी। निगर से मनिगर, ना देख। रो से मरो, ना चल। नुमा से मनुमा, ना दिखा। कश से मकश, ना खींच। और अगर इस फ़ेल को फिर हम मसदरी माने में लाना चाहें तो बाज़ औक़ात अमर से अमर का सीगा लगा देते हैं, कभी अमर के आगे शीन बढ़ा देते हैं, कभी माजी मुतलक का सीगा मसदर के तौर पे ले आते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, कोई एक फार्मूला नहीं है। जैसे खराम, ये फ़ेल के तौर पर भी आता है अमर का और इसम के तौर पर भी। गर्द से हमने फ़ेल अमर से इसम बना लिया आगे शीन लगा के, गर्दिश यानी घूमना, यानी गश्तन भी घूमना था, अब गर्दिश भी घूमना हो गया। गर्दीदन भी घूमना और गर्दिश भी घूमना। जीस्त खुद फ़ेल माजी मुतलक है, वो जिया, लेकिन ये मसदरी माना भी देता है, जीना। कहते हैं मेरी जीस्त से तो सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई। और इसी से ज़िंदगी भी बन जाता है, ज़िंदगी, वो भी हासिल मसदर है। निगर से निगरानी, ये हासिल मसदर बन गया। रो से यानी फ़ेल अमर के आगे शीन लगा दी, लेकिन जब शीन लगाएंगे तो उससे पहले ज़ेर लाजमी होनी चाहिए, रविश। कश से बन गया कशिश, खिंचाओ, खींचना। अब ये कश मकश आम तौर पे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, खींच ना खींच, खींच ना खींच, गोया खींचा तानी लगी हुई है, एक कहता खींच, दूसरा कहता ना खींच, इसी को झगड़े के माने में लेते हैं। तो ये आज का सबक है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल के साथ ताउन करना चाहें तो उसकी गुंजाइश भी मौजूद है, क्योंकि मेरा मोनेटाइजेशन की तरफ रुझान बहुत कम है। इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।